Guru Nanak was the founder of Sikhism. He established the Sikh religion. And these things we will not go in details because these things we will know and read in medieval history. Okay? But jaha important jinso janiya bujiba pai that we will discuss. Likewise, he was the first guru of Sikhism. Likewise, there were 9 more gurus and total 10th guru. Who was the 10th guru? Guru Gobind Singh. First. Acha, and Guru Gobind Singh. Yes, exactly, Sujata. Guru Gobind Singh was the 10th guru. Okay. And Guru Gobind Singh बहुत किसी contribution देखी जाती है to Sikhism. Some of them were first Khalsa Panth, Khalsa Panth से सिख पीपल को गोटे ट्रेंड आर्मी हिसाब से ट्रेंड करते राइट सो दैट इज खालसा पंथ से जो स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्रेव सिख आर्मी हिसाब से मिलिटेंट हिसाब से ट्रेन करते मिलिटेंट हिसाब से राइट आर्मी हिसाब से दैट इज खालसा पंथ एंड इवन गुरु गोविंद सिंह कर जो ब्रेवरी अच्छी ताकू नहीं कि एबे भी बहुत सारा जिनस बहुत सारा कथा गुड़ा फेमस अच्छी not only about Guru Gobind Singh, the whole Sikh clan, right? सवा लाख ते एक लड़ाऊं, you must have heard that. सवा लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं. That means one Sikh is equal to सवा लाख people. They can fight with, they are so brave. And to this bravery, तांकु first train करते Guru Gobind Singh Khalsa Panth. Clear? Second is 5 Ks of Sikhism. किछि गुड़ा तांको पूर्वरु थिला, किछि गुड़ा से करिले, finally became 5 Ks of Sikhism. Who can tell me these 5 Ks of Sikhism? Kripan, Kesh, Kada, Kripan, then केश कृपान कड़ा आउ कौन केश कृपान कड़ा कंघा एंड कचरा केश कृपान कड़ा कंघा एंड कचेरा it's not kachra okay kachera so kesh uncut long hair kada bola right then kripan one choto knife bhaliya choto kripan se mane eiti bandi ki rakhନ୍ତି then kangha and kachera it's a kind of long underwear kind of garment kangi panya and that kachera long underwear kind of garment that they wear under the clothes
Then Guru Gobind Singh also declared he will be the last religious guru of Sikhism. Tanko pore there will be no guru in Sikhism. Guru Granth Sahib will be accepted as guru. Guru Granth Sahib will be the guru of Sikhs after Guru Gobind Singh. सेई ग्रंथ साहिब को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाए. Done. And the final thing that is important for us that he declared Banda Bahadur. Banda Bahadur as the political guru of Sikhs. Don't be confused. Write down, I will explain. He declared Banda Bahadur as the political guru or the leader or the leaders of Sikhs. Sikh troops, Sikhs. Political guru or leader of Sikh troops or Sikhs. Here don't be confused. Gotiade se kouchanti, there will be no more gurus. Guru Granth Sahib will be the only guru, and simultaneously he is announcing one guru. Right? How? So see, it clear. These two things are clear. तांको गला टाइम रे से अनाउंस करिले गुरु ग्रंथ साहिब विल बी द ओनली गुरु ताकू देखि कि सेतरे जहा लिखाई छि ताकू ही फॉलो करिवो. गुरु रो काम कोन से मार्गदर्शन करंती. राइट? सो दैट मीन्स गुरु ग्रंथ साहिब विल डू मार्गदर्शन फॉर यू. देन सेटा हला रिलीजियस वे. बंदा बहादुर हेले तांको लीडर जे कि तांको सपोर्ट करिवे, तांको हेल्प करिवे एंड तांको प्रोटेक्ट करिवे फ्रॉम अदर्स, अदर पावरफुल people. Okay, so like से टाइम रे मुगल्स कर भी बहुत आतंक थिला लोकंक मध्य रे. Even Aurangzeb was there at that time and he was termed as very cruel person kind of thing, very orthodox. So गोटे ब्रिटिश भी साम्राज्य विस्तार करुचंती. That is why to give them proper guidance in war, in battlefield, निजर सुरक्षा पाई लड़े लागिया पाई तांको से खाली हायर करथिले, अपॉइंट करथिले एज अ लीडर ऑफ द ट्रूप यू कैन से. ओके, बट रिलीजियस गुरु गुरु ग्रंथ साहिब ही रहिबो. रिलीजियस एक्टिविटीज गुरु ग्रंथ साहिब रे जहा लिखाई जे सेटा ही एज इट इज फॉलो करिवे ऑल द सिक्स. क्लियर? आई होप ए दीटा पॉइंट समस्त को बुझी हेची. एपियंस इफ यस प्लीज कमेंट यस सो दैट आमे आगु को जिबा. This is the whole scenario. Now Banda Bahadur is in the main lead. So here Banda Bahadur becomes the hero now. Okay, thank you Sujata, thank you so much. So now Banda Bahadur is the hero. Basically से थिले कश्मीर रो. तांकर एक्चुअल ना हैला लक्ष्मण देव. लक्ष्मण देव लक्ष्मण देव फ्रॉम कश्मीर. देव इधर DEO भी है पारिबो और DEV भी है पारिबो. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. He was so strong and leading a very strong army as well. Sikh
दे आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी आ तांकर जो रेपुटेशन गुरु गोविंद सिंह बने की जाइतिले एज वॉरियर क्लैन ता उपरे ब्रेव हीरो लाइक बंदा बहादुर इज लीडिंग सो एटा गोटे से कौन करिले पावर रे आसिला परे से जो सिख साम्राज्य को कंसोलिडेट करबा स्टार्ट करिले जो जो एरिया रे सिक्स थिले से सब को निज एरिया रे आनिबा स्टार्ट करिले से ए जिनस प्रॉब्लम हैला मुगल्स को एंड ब्रिटिश आर लेटर बट मुगल्स को मेनली प्रॉब्लम हैला से माने तांकू अज्यूम करिले एज अ थ्रेट ओके सी ग्रेटर मुगल सरी जाइछंती because during Guru Gobind Singh was the contemporary to Aurangzeb, right? Greater Mughals sorry ଯାଇଛନ୍ତି. Now later Mughals are there. So they were also not that much powerful. ତାଙ୍କୁ ଡର ଅଛି ଏତିକି ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ଯଦି ସେଠି ଅଛି ସେ ଆମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବି ହଡପ କରିନବ. So one person here is there. ନା ମନେ ପଡୁଛି କଣ ଥିଲା contribution last contribution दिवानी राइट्स नो मैग्ना कार्टा दस्तक राइट्स टू ब्रिटिश राइट गुड so Farooq Shiar Mughal emperor he ordered to capture Banda Bahadur and chop him in pieces and तांकू कैप्चर करिकी तांकू टुकड़ा टुकड़ा रे फारूक शियार मुगल एम्पायर से ऑर्डर देले बंदा बहादुर को कैप्चर करिकी ताकू पीछे से चॉप कर देबा पई काटी देबा पई छोट छोट टुकड़ा कर देबा पई तांकू एंड द सेम थिंग हैपेंड तांकर छोट छोट टुकड़ा कर दिया गला एते भयानक कहीं नॉर्मल तो मार दे पारता छोट छोट टुकड़ा करिया दरकार कोन डर बसी जीव लोकंक मनरे नेक्स्ट टाइम के आउ रेस वॉइस रेस करबा चेष्टा भी करिवेनी सो बंदा बहादुर वाज वन ऑफ द गाय जे कि गाय वी शुड नॉट से वन ऑफ द लीडर जे कि कंसोलिडेट करिले सिख एम्पायर को एंड तांको मृत्यु परे तांकर जो सिख एम्पायर जो से कंसोलिडेट करथिले सेतिरे 12 मिजल्स थिला जेमिति कि आम राज्य थाए इंडिया कंट्री तार राज्य सेमिति तांकर किंगडम रो मिजल्स रे डिवाइड करा हिथिला 12 मिजल्स MISLS 12 missiles जोटा कि बंदा बहादुर को चली गला परे निज निज हिसाब रे माने इंडिपेंडेंट हे ओके क्लियर so this is about बंदा बहादुर 12 मिसिल्स रु गोटे इंपोर्टेंट मिसिल थिला सुकर चकिया मिसिल ओके लेट्स रीड अबाउट दैट वाज मोस्ट इंपोर्टेंट काहे कि इंपोर्टेंट अछि सेटा because of this person Maharaja Ranjit Singh he was the son of the ruler of that Sukar Chakia missile.
सुकर चकिया मिसल. Done. पावर को आसिला परे जितेले से पावर को आसिले इन 1801 फर्स्ट काम से करिले ऑल 12 मिसल्स को मिसई की गोटे पंजाब किंगडम से एस्टाब्लिश करिले आउ थरे जोटा कि बंदा बहादुर करितिले से जिंस से करिले ऑल 12 मिसल्स को मिसई की पंजाब जो सिख रिजन टा क्रिएट करिले जहाँ अंडर रे आसिला वेरियस प्लेसेस and you will be surprised to know Jammu and Kashmir was one of the missile of that, one of the part. So तांको एरिया रे मेजर एरिया आसिला तांकर लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, पेशावर, मुल्तान, ये सब एरिया कोठी अछि पाकिस्तान. एंड जम्मू एंड कश्मीर, अमृतसर, कांगड़ा, these are the major cities in Maharaja Ranjit Singh's empire. 40 years he ruled, around 40 years, right? It's 9. Around 40 years he ruled. So we can assume how powerful he was, isn't it? अच्छा देखो कौन है बंदा बहादुर को चली गला परे ब्रिटिश माने तो ऑलरेडी ताक रे बसथिले ना कि आमे केते बेले कैप्चर करबा केते कैप्चर करबा बंदा बहादुर जितले चली गले ब्रिटिश ट्राइड टू कैप्चर द एरियाज ओके बहुत सारे एरियाज ब्रिटिश पाखरे थिला सो जितले महाराजा रणजीत सिंह पावर को आसिले से गोटे ट्रिटी करिले विथ ब्रिटिश ट्रिटी ऑफ अमृतसर yes Amritsar was one of his cities treaty of Amritsar sign करिले जहाँ अंडर रे each others occupied territory से रिटर्न कर देबे दैट मींस ब्रिटिश रो जहाँ टेरिटरी तांको पाखरे थिला से दे देबे आंकर जो टेरिटरी ब्रिटिश पाखरे थिला से तांको फेरे देबे टू रिटर्न each others occupied territory एबे पर्यंत पीस चली ब्रिटिश एंड सिख मध्य महाराजा रणजीत सिंह कर दीटा कैपिटल थिला जेमिति जम्मू काश्मीर एक सहित थिला बेलकु तार दीटा कैपिटल थिला ना समर एंड विंटर पय अलग अलग आंकर दीटा कैपिटल थिला लाहौर एंड अमृतसर लाहौर है तांकर पॉलिटिकल कैपिटल एंड अमृतसर है रिलीजियस कैपिटल लाहौर है पॉलिटिकल कैपिटल अमृतसर है religious capital and he was the person who was having
most precious and most known Kohinoor diamond. Kohinoor diamond ଯେତେବେଳେ attack କରିଥିଲେ foreigners ସେମାନେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ଆମେ medieval India ରେ ପଢିବା but from them ସେ ପାଇଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ସିଂ okay so ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା Kohinoor diamond also ଆମ Kohinoor he was so powerful he was also known as रंजीत सिंह उपरे गोटे सीरियल आसे ना टीवी सीरियल महाराजा रंजीत सिंह शेर पंजाब और लायन ऑफ पंजाब डन सो से थिबा पर्यंत ब्रिटिश मानक सहित बहुत भल संपर्क थिला but after he lost his life then British started showing their own colors and here we will discuss about the first Anglo-Sikh war now understand the scenario रंजीत सिंह को मृत्यु होईची in the year in 39 but first Anglo Sikh war होईची 1845 तो एई 6 वर्ष पर्यंत तो किछि तो होउतिबो सेई साम्राज्य रे जदि राजा जणे चाली गले कोन हबो हम कोन कहउतिलो आउ किछि आंसर राजा चाली गले राजार बड़ पुओ राजा हे जिबे वेरी सिंपल राइट सो महाराजा रंजीत सिंह कर भी से जिंस हैला तांको बड़ पुओ बिकेम द किंग तांकर 4 जण पुओ थिले सो फर्स्ट सन couldn't became the king but couldn't survive more चाली गले सेकेंड पुओ पुणी राजगद्दी रे बसिले से भी बहुत कम समय बंचिले चाली गले same happened with third son and finally his fourth son his son who was a kid at that time Maharaja Dilip Singh became the ruler सो दलीप सिंह जेहेतु से इनफेंट अछंती तांको बिहाफ रे किए जणे संभाळिबे सिथिले महारानी जिंदन जिंदन कौर क्वीन ऑफ रंजीत सिंह हिस्ट्री लास्ट टाइम आमे केबे देखिथिलु एमिति माइनर सन रो बिहाफ रे डोंट सी आंसर माय क्वेश्चन माइनर सन रो बिहाफ रे तांको मा साम्राज्य संभाळुथिले शिवाजी 2 his mom's name ताराबाई
पूरा घोषी देछ सब जिनस वेरी गुड सो यस शिवाजी टू इन्फेंट थिले तांको मा ताराबाई साम्राज्य संभाळुथिले लाइकवाइज महाराजा दलीप सिंह वाज अ किड एंड ऑन हिज बिहाफ हिज मदर महारानी जिंदन कौर शी वाज रूलिंग बट सबु जगार जमी थाए पॉइजनस स्नेक्स किसी गुड़ा धोखेबाज लोक दरबार भी थिले एंड बिकॉज ऑफ देम तांको मध्य बैटल है बैटल ऑफ सबराउं बैटल ऑफ सबराउं बैटल ऑफ सबराउं बैटल ऑफ सबराउं जो कि क्वीन जिंदन कौर लॉस्ट महारानी जिंदन कौर हारी गले दैट मीन्स महाराजा दलीप सिंह हारी गले हु वाज अ very young at that time very small child at that time clear हारी जाइछंती माने तो कौन हम ट्रिटी हम सो ट्रिटी ऑफ लाहौर ट्रिटी ऑफ लाहौर सो ट्रिटी ऑफ लाहौर बहुत सारा सर्कमस्टेंसेस थिला फर्स्ट सर्कमस्टेंस थिला कि क्वीन जिंदन महारानी जिंदन एंड राजा दलीप सिंह से तांको राज्य रे जेमिति कि सेमति थिबे अच्छा दलीप रो स्पेलिंग बहुत जगह रे DULIP अच्छी DULLIP अच्छी DILLIP अच्छी DALLIP भी अच्छी so दिलीप किंबा दलीप whatever it is don't be confused महाराजा दलीप सिंह किंबा महाराजा दिलीप सिंह जदि आसुची he is the same person okay ओके सुजाता लिखी ये गोटे पोएम विषय तारा बाईची रंजीत केसरी ताराबाई and Ranjit Singh Kesari means lion right so mention about both the queens and both their children so Dalip Singh and Jindan Kaur they will be as per their requisite position से तांको position रे थिबे first second condition कश्मीर हजारा Jalandhar and some other regions in Beas and Indus Doab. Will be given to British. What is Doab? Exactly. Indus river अछि Beas river अछि दीटा river parallelly बहुछि तो ता मझी जो एरिया टा it's very fertile कारण दीटा एक नदी सबु नहीं कि आसुची right सबु जिनस तांको सहित नहीं कि आसुचंदी it may be soil it may be humus it may be anything fertile तो सबु जिनस को आनी कि से कॉर्नर रे ही जमा करछंदी
दे जो दोआब एरियाटा वेरी फर्टाइल एरिया, बहुत बहुत फर्टाइल एरिया। सो ए एरिया रे ऑब्वियसली जने जदि रूल करिवो बहुत बेनिफिट हबो। सो कश्मीर, हजारा, जलंधर एंड ब्यास एंड इंडस दोआब एटा चली गला ब्रिटिश हाथ रे। Then also British demanded and got 1.5 crore rupees as war compensation. Yes, war compensation. एटा मैं देखी छु ना नॉर्मली जो भी वॉर होची गोटे अमाउंट से माने नौचंती कोन पई तमो से तो लड़ी लागिबारे हमर एते पैसा खर्च हेछि, तो सेई ता एवज रे माने ई पैसा निउती बाकी जहां नेले सेटा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। सो ଆଉ ଗୋଟେ condition ରଖାଗଲା that Sikhs will limit their troops. Sikhs will limit their troops. And ସେମାନେ ସନ୍ଧିର condition को ଭଲରେ ମାନୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ against କିଛି conspiracy ନ କରନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ जो रानी जिंदन तांको दरबार रे जने ब्रिटिश रेजिडेंट को अपॉइंट कर दिया गला। हिज नेम वाज हेनरी लॉरेंस। Henry Lawrence, British resident. Then here first Anglo-Sikh war completes. Then second Anglo-Sikh war. Tell me what can be the possible causes behind this? Possible causes कौन है परिबो को? किए ब्रीच करथिबो? No one. No one breached. Then what can be the causes? लास्ट आमे को वॉर पढ़ीछु या पूर्वरु? लास्ट वॉर कोन पाई हेतला? लास्ट मराठा वॉर ट्रिटी जो हेतिला को ट्रिटी हेतिला? तीनटा ट्रिटी हेतिला ना? सूरज देवराज, राइट? राजघाट, देवगांव, सूर्य अर्जनगांव। मैसूर वॉर रे लास्ट वॉर कोन पाई हेतिला? ट्रिटी कोटा हेतिला मैसूर वॉर रे लास्ट ट्रिटी कोटा हेतिला? एमएमएस, ट्रिटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, राइट? तापरे लास्ट वॉर कोन पाई हेतिला? Humiliation na. Tipu Sultan, he couldn't bear the humiliation. Marathas, they couldn't bear the humiliation in the last treaty, right? Same, first thing, Sikhs couldn't tolerate the humiliation. Second है
क्वीन जिंदन क्वीन अछंती, दिलीप सिंह किंग अछंती, स्टिल तांको कोर्ट रे जने बसचंती ब्रिटिश ऑफिसर, and this Queen Jindan was ill treated by British. Ill treatment to Queen Jindan. थर्ड रीजन है मुल्तान रीजन. मुल्तान रीजन रे प्रीवियसली जे दीवान थिले, दीवान मीन्स जे पूरा पैसा पत्र अकाउंट्स ऑडिटर काइंड ऑफ पर्सन, सीए काइंड ऑफ पर्सन जे पैसा पत्र सब हिसाब रखती से थिले दीवान मूलराज. दीवान मूलराज जे कि जहाँ को कि रिप्लेस कर दिया गला जने ब्रिटिश पपेट, ब्रिटिश को जो वो लॉयल थिला जने लोक कहन सिंह, सरदार कहन सिंह. कहन सिंह, सरदार कहन सिंह वाज लॉयल टू ब्रिटिश. से ही पाई मूलराज को, दीवान मूलराज को रिप्लेस कर दिया गला कहन सिंह को द्वारा. And Mulraj was killed by Vance Andrew, one of the British agent. One of the British agent, Vance Andrew, he killed Mulraj, and these all were the major causes behind Second Anglo-Sikh War. Courses of action. कौन कौन काम होता? Three battles होता. First है Battle of Ramnagar. Second Battle of Chilianwala. Third है Battle of Gujarat. Done. এই দুইটা ব্যাটল শিখ জিতিলে. But the third and final battle was won by British. So finally कार जीत हबो एटी? British. They won the final war, right? अच्छा आमे सबु वर्ड से देखिचु. फर्स्ट जितले से ह्यूमिलिएट हे कि अटैक करंती, तापरे ब्रिटिशर्स कोन करंती? कंप्लीट वाइंड अप कर दियंती. कारण से जानि जंती कि से माने थरे वॉइस रेस करछंती माने आउ थरे भी से माने वॉइस रेस करिवे. से इनिशियली चाहंतीनी कि आमे पूरा जड़ से समाप्त कर देबा, कारण से जानि जंती लोक माने रिवोल्ट करिवे. बट जेतेले तांको ऊपर एमाने निज आडू अटैक करछंती, ये भाबंती कोन आम पाखरे गोटे एक्सक्यूज अछि. सो आउ नेक्स्ट टाइम जदि थरेस माने वॉइस रेज करछंती माने आउ थरे भी वॉइस रेज करिवे. एंड दिस अटैक वाज डन फ्रॉम द सिख साइड फर्स्ट. रानी जिंदन को ऑर्डर रे सिख स्टार्ट करथिले सेकंड एंग्लो सिख वॉर.
कौन हम ये रिजल्ट कौन हम ऑफिसर्स कैप्चर कर देवे ओके देन मार देवे क्या जिंदन क्वीन को आओ दिलीप सिंह को ओके देन आउ किछि अछि करिया पई नहीं ट्रिटी आउ खास तो करिवे तांको जदी मार देले खास तो ट्रिटी करिवे अच्छा so first thing they captured the region that is correct okay but they did not kill the queen and his son her son छोटो छुआटा ना मारी देवे लोक तांको मारी देवे छाड़ीबेनी right and Sikh are already they termed as very brave clan Khalsa Panth so से ଆଉ ରାନୀ ଜିନ୍ଦନ କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ରଖିଲେ ନାହିଁ ଜିନ୍ଦନ କୁ से ପଠେଇ ଦେଲେ ଟୁ ଫିରୋଜପୁର जिंदन को से पठे देले फिरोजपुर तांको गोटे छोटिया पेंशन देकी तांको नजरबंद करके रखी देले नजरबंद मींस से तांको नजर सामना रे रही जहाँ से करिवे तांको नजर रे आसीबो ओके रानी जिंदन को से फिरोजपुर डिपोर्ट कर देले सेठी गोटे मिनिमम पेंशन दे देले कि टिके पैसाटा तांको चलेला भलिया आ सेठी तांको नजरबंद करके रखी देले दिलीप सिंह सर आपण बुझी पाइले ना पेंशन काहे की दउचंदे दलीप सिंह जे कि 11 इयर्स ओल्ड थिले से टाइम रे तांको पठे देले इंग्लैंड से सेठी रही की बड़ हेले सेठी पाठ पढ़ी की ही ग्रू जॉन लॉरेंस became the chief commissioner of Punjab region and finally सबुठारु प्रीसियस कोहिनूर this was the time कोहिनूर went to England and it was adorned the throne of the queen को जो मुकुट रे लागिला so कोहिनूर was sent to Britain कोहिनूर को ब्रिटेन रे पठे दिया गला सेटा एबे भी मुकुट रे लागि छि जोडा कि हमें देखि परिबा हमें किछि करि परिबा नाही इवन से दिलीप सिंह को सहित गोटे एक साइन करे देले कि गोटे डॉक्यूमेंट काइंड ऑफ कि तांको इच्छा रु से ए कोहिनूरटा गिफ्ट करूचंती टू द क्वीन द किंग हु इज 11 इयर्स ओल्ड राइट तांको कोन बुझा अछि कोन नाही तो तांको हाथरु से साइन करे देले कि से एई कोहिनूरटा गिफ्ट करूचंती निजे आ जेहेतु बहुत थर आर्ग्युमेंट शुणिथिबो ना कोहिनूर को नहीं कि आमे ताको आनिबा आनी परिबा नाही आनी परिबा नाही दिस इज द रीजन आमे ताको आनी परिबा नाही आमे जदि से माने लुटी की नहीं थांते आमे ताको आनी पार थांते किंतु जो अग्रीमेंट रे लेखा है जी कि आमे निज इच्छा रु तांको गिफ्ट देछु राइट राजा दिलीप सिंह तांको इच्छा रु गिफ्ट देछंती तांको से टाइम रे सेटा तांको प्रॉपर्टी थिला हाँ माइनर थिले सेही पाई तो एक्सेप्ट कर देले से माइनर जो डॉक्यूमेंट देखे सेटा तो लॉ हिसाब से एक्सेप्टेड न लॉ बहुत परे हे छी ना
आम इंडियन लॉ सेटा बेसिस मतलब जो आज जो लॉ आज ही एप्लिकेबल हम आ पूर्व जो क्राइम होता एप्लिकेबल हम ना यू ऑल नो दैट पॉलिटी रे पढ़ीच राइट सो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट एग्जैक्ट टर्म procedure under law something procedure established by law exactly yes procedure established by law तो आज लॉ स्टार्ट होइछ माने आज परे एटा एप्लिकेबल हबो आ पूर्वरु जने जदी क्राइम कर देथिबो ताकू से फांसी लागिबो नाही गेटिंग लॉ केबे हमर इंप्लीमेंट होइछ सो वी कैन नॉट क्लेम कोहिनूर बिकॉज इट इज द गिफ्ट आ जद आमे दान करथिबा जिंसो केबे भी आनी परिबा नाही नबार नाही क्लेम करि पारथांते जदी से एग्रीमेंट न थांता then we could have claimed so this is all about Anglo-Sikh wars and one important thing राजा रणजीत सिंह जितेले से जीवित थिले तांकर गोटे